हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next point is the most important here, thermal power source. There is the most important here, thermal power source. In the thermal power, their major source of energy are coal, diesel, and natural gas. There is a thermal power is a major source of energy here, coal, diesel, and natural gas that are used for generation of the electricity. You know that there is a large number of electricity produced here, only the coal, diesel, and natural gas here. It is the largest source of power supply in the country. The installed capacity of thermal power station is about 3 times the installed capacity of hydro power. During 2004 to 5, share of thermal power was about 80,903 megawatt out of 1,18,419 megawatt of the year. There is the most important 80,903 is a megawatt power are produced here only for the coal, diesel, and natural gas. Reminder here, some thereof the electricity produced on the country, and this approximately the 68% of the total electricity produced in India. There is the most important 68% of produce of energy here, coal, diesel, and natural gas here. And their share of thermal electricity increasing very rapidly after the creation of the National Thermal Power Corporation, means NTPC. In the year 1975, presently the NTPC has to be create 13 coal-based super thermal power project and 7 gas liquid fuel-based. During 2005 to 4, their NTPC is a produce of 24,435 megawatt, which is about 30% of the all India thermal production during this same period here. Coal-based thermal power unit has been to set up the near the coal mine to avoid to transport a cost. Transmission of power over to long distances is relatively is a cheaper device with some loss of energy is a transist here. There is an important of NTPC is the play of role. Superthermal power plants has been established mainly very close to the big coal mine, and these are the Singrauli, UP, and Korba, Chhattisgarh, and Namgandam is a AP, is a Farakka, is a West Bengal, and Vidyanchal is a MP, and Narayana is a UP, and Kavas is a Gujarat, and Gandhar is a Gujarat, and Tanchar is a Odisha. Most of these power plant have improved their efficiency of is a profitability, and through their improved to plant load factor to 78 against their national average of 63. You know that 78 against the national average of 63 only. With the is a electrification of trunk routes and railways has also set up their urban super thermal power here.
station is the region lying away from two major coal fields. There is a most important field here. In Tamil Nadu, there is a big thermal power plant at the Neyveli, which is feed by the local lignite coal field here. Besides the coal base of thermal power plant, there are latest tend to be in carriage of diesel and natural gas-based thermal power plant here. Such a plant can be a set near the distribution of market center. There is a most important here view. Such a plant or can be a nearby distributor or market center. The gas stations is a period of the oil and gas. A base plant is generally the shortest. And these plants are also found to be more efficient than coal-based plants here. The oil and gas pipes has to be led to the continuous supply of petroleum and natural gas for such a power plants here. As India is a poor in its mineral oil and province is a gas resources, it has to import of these raw materials, including a naphtha, etc., from a Middle East countries. The new Eldel Fall thermal power plant of Maharashtra on a Konkan is a coastal is a basin on such as imported raw material. This plant is an indicator of new trend. Petroleum-based power unit has been set up in a remote area of northern, eastern, and Himalayan regions here. It is a very interesting to be note that Karnataka and Kerala state is a south have not be single thermal power plant till now. Can you explain this reason? There is an important here question here. उसके पश्चात है ताप विद्युत स्रोत। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ताप विद्युत स्रोत। क्या ताप विद्युत के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाए तो कोयला, डीजल एवं प्राकृतिक गैस का स्थान आता है, जिसके प्रयोग विद्युत उत्पादन में होता है। कहते हैं ताप विद्युत की देश में बिजली आपूर्ति में सबसे अधिक योगदान करता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ताप विद्युत में जो है बिजली आपूर्ति में सबसे योगदान जो है कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस का ही है। विद्युत उत्पादन के जो है विस्तृत संयंत्र में ताप विद्युत की क्षमता जो है जल विद्युतीय से 3 गुना अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी जो है 3 गुना अधिक है, यानी विद्युत उत्पादन में अधिष्ठित यंत्रों से ताप विद्युत की क्षमता जल विद्युत से जो है 3 गुना अधिक है। क्या 2004 और 2005 में ताप विद्युत का योगदान जो था 80,902 मेगावाट रहा, लेकिन जो देश में विद्युत उत्पादन उस समय हो रही थी 1,18,419 मेगावाट का देखा जाए तो 60% जो है कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस से ही आ रहा था। तो आप समझ सकते हो कि 80% जो है ताप विद्युत का ही उपयोग की जा रही थी, चाहे कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस के अंतर्गत 60% से अधिक जो है इनसे उत्पादन होती थी। सन 1975 में जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना के ताप विद्युत के योगदान को लगातार तीव्र गति हो ही रही है। वर्तमान में जो है NCTP के अंतर्गत कोयले पर आधारित 13 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं तथा 7 जो है गैस द्रव्य पर संचालित संयंत्र बनाए गए हैं। वर्ष 2004 और 2005 में जो है NCTPC ने जो है 24,435 मेगावाट ताप विद्युत का उत्पादन किया, जो देश में उत्पादित ताप विद्युत का जो है 30% था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है NTPC का जो है कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर साफ कर दिया कि 2004 से जो है 5 में जो है 24,435 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, यानी देश की भागीदारी में 30% का हिस्सा होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना कोयले की खदानों के जो है समीपस्थ क्षेत्र में की गई, ताकि संयंत्र तक परिवर्तन लगातार बचाई जा सके। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है कि कोयले की खदानों के समीपस्थ, कहते कोई भी कारखाने हो या कोई भी जो है ताप केंद्र हो या कोई भी केंद्र हो, इनके जो है कच्चे सामग्री के आसपास ही स्थापित किया जाता है। तो इसीलिए कोयले को जो है खदानों के आसपास ही यांत्रिक परिवहन की तक लगा बचाई जा सके, इसलिए स्थापना किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है। कहते विद्युत संयंत्र दूरस्थ क्षेत्रों में कोने में भी जो है किफ़ायती साबित होता है, हालांकि संक्षेप में कुछ शक्ति हर्ष अवश्य होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर जो है कोयले की जो तंत्र शक्तियों का उपयोग किया गया है और इसके जो है विद्युत उत्पादन में जो प्रयोग हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है। और देखा जाए तो 2004 से 5 में जो है
24,435 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सुपर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना भी कोयले खदानों के समीप की गई है। ये जो है सिंगरौली, जैकोबड़ा, जो रामागुंडम मध्य प्रदेश, फरीक पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, और देखा जाए तो आपका रिहिंद उत्तर प्रदेश, रावस गुजरात, गदार गुजरात तथा तालचेर उड़ीसा। आखिर ये बात आपके दिमाग में आता होगा कि जो विद्युत संयंत्रों की स्थापना जो है कोयले खदानों के समीप क्यों की जाती है। तो इसका सही आंसर ये है कि कोयले खदानों के पास जो है ताप विद्युत संयंत्र को जो है स्थापन करना बहुत ही सरल रहता है। रीजन्स ये रहती है कि वहाँ पर जो है कोयला बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और आपको पता है कि विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए कोयले की कितनी आवश्यकता होती है। इसलिए जितने भी सुपर ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना होती है कोयले खदानों के समीप ही होती है, जिससे कोयला जो है सुचारू रूप से उपलब्ध हो जाए, और इससे जो है यातायात में बहुत से धन जो है बच जाते हैं। इसलिए जो है जितने भी चीज़ें होती है उनका जो है स्थापना बेशक उसी रॉ मटेरियल के आसपास ही होती है, चाहे कुछ भी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है। अगर बात यहाँ पर हम करें राज्यों की, देखिए उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। और कहते हैं गुजरात में 2 जगह जो है इसकी स्थापना की गई है, इवन कि उड़ीसा में भी है। इसमें से अधिकांश संयंत्रों ने अपनी कार्य दक्षता एवं लाभांश को जो है प्लांट लैड फैक्टर को प्रयत्न कर बढ़ा दिया है, और राष्ट्रीय औसत जो है 63% की तुलना में जो है 78% हो गई है। तो देखा जाए तो ये समय के साथ जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। रेल विभाग अपनी मुख्य लाइनों का विद्युतीकरण करने की योजना जो है कार्यान्वित करना चाहता है, और इसके लिए वह प्रमुख कोयला क्षेत्र के निकट अपने सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित कर रहा है। अब देखिए, देखा जाए तो रेल जो है कोयले पे पहले आश्रित थी। अभी भी देखा जाए तो कहीं हद तक जो है रेलवे जो है कोयला पर ही आश्रित रहेगी, क्योंकि अगर विद्युत से गाड़ी चल रही है तो कोयले के खदानों के पास जो है इनको विद्युत जो है विद्युतीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विद्युत बनेगी नहीं रेल जो है सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि रेल विभाग अपनी मुख्य लाइनों का जो है विद्युतीकरण करने की योजना तो बना ली है और बन भी चुकी है, और इसके लिए वो प्रमुख कोयला क्षेत्र के निकट अपने सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित कर भी रहा है। भारतीय रेल अपना सुपर ताप विद्युत संयंत्र जो है नेवेली तमिलनाडु में स्थापित किया है, और इसे कोयले की जो है आपूर्ति नेहवाली लिग्नाइट्स कोल क्षेत्र से की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है देखा जाए तो विद्युत पे जो है बहुत ही आश्रित हो चुके हैं। इवन कि जो है विद्युत के बिना हम अपने जीवन को मान भी नहीं सकते। आप चाहे घर में रहो चाहे कहीं भी रहो, आप हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे ही आश्रित हो गए हो। लेकिन देखा जाए तो इसकी जो है महत्ता को हमें समझने की आवश्यकता है, तभी जो है विद्युत को जो है सही उपयोग भी किया जा सकता है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के साथ आजकल की जो है नवीनतम प्रवृत्ति डीजल तथा प्राकृतिक गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित करना है। ऐसे संयंत्रों को जो है विपणन के अथवा उपयोग के क्षेत्र या बाजार के केंद्र के पास स्थापित किया जा सकता है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी जो है उपकरणों को जो है उनके कच्चे रॉ मटेरियल के आसपास ही स्थापना करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से धन जो है बच जाते हैं। इसलिए उपयोग के क्षेत्र या बाजार के पास स्थापित किया जा सकता है, और तेल तथा गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को लगाने व चालू करने की अवधि सामान्यतः बहुत छोटी ही होती है। और इसके अलावा पेट्रोल गैस पर आधारित संयंत्र की उत्पादन क्षमता भी कोयले पर आधारित संयंत्रों से अच्छी ही होती है, परंतु इन संयंत्रों को जो है कार्यशील रहने के लिए पेट्रोल या प्राकृतिक गैस के जो है पाइपलाइन बिछाकर जो है अनवरत आपूर्ति करना होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के समय जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के जो है पाइपलाइन बिछा दी गई है, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बिछा तो दी गई है, लेकिन इसको से जो है मेंटेनेंस करने में बहुत ही धन का जो है इसमें लागत लग रही है। तो ये कहते हैं अगर अच्छा इसका बेनिफिट है तो लागत भी यहाँ पर मान्यता नहीं देती है कुछ भी, क्योंकि भारत खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस संसाधनों में समृद्ध नहीं है। ये तो आपको भली भांति पता है कि भारत के पास जो है तेल, खनिज तेल हो या प्राकृतिक गैस हो, ये उपलब्ध इतना अधिक अमाउंट में नहीं है जो कई टाइमों तक चल सके। इसलिए भारत को इनका तथा जो है नेफ्था आदि का जो मध्य पूर्वी खाड़ियों के देशों से आयात करना पड़ता है। महाराष्ट्र के कोकेन तटबंधीय क्षेत्र में इन्हीं आयातित खनिज तेल तथा अन्य सामग्रियों पर आधारित जो है डायवोल ताप विद्युत संयंत्र स्थापित भी किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इस संयंत्र की स्थापना भारत में नई प्रवृत्ति का संकेत है और आने वाला समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। खनिज तेल पर आधारित अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर पूर्वी सुदूर क्षेत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में स्थापित भी किए गए हैं। यानी देखा जाए सुदूर क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। यह ध्यान देने योग्य तथ्य यहाँ पर आता है कि दक्षिण के कर्नाटक तक केरल राज्यों में भी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना आज तक नहीं की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि देखिए केरल जैसे विकसित राज्य में आज तक तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना नहीं होना, ये भी बहुत ही बड़ी बात आती है। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे कारणों पर विचार भी किया जाएगा आगे चल के। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस ये NIC बोर्ड के 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।